Hello guys, welcome to the part second of the PYQ series. So today also we have slot 1, CAT 2024. So we're going to solve this passage. So let me show you the passage. Okay, so this is the passage. Okay, 4 questions. Solve करते हैं इसको, ठीक है. तो सबसे पहले तो एक बार एक आइडिया लगाते हैं कि what is the passage talking about. As I always say, you should try to get a sense of what the passage discusses. So let's see क्या है passage. Okay, first paragraph देखते हैं. Let's look at the very first para. Oftentimes, when economists cross borders, they're less interested in learning from others than in invading their garden plots. Gary Becker, for instance, pioneered the idea of human capital. To do so, he famously tackled topics like crime and domesticity, applying methods on in the study of markets to domain of non-market life. ओके सो किसी तो भी इकोनॉमिस्ट की बात हो रही है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पैसेज है, और ये जो इकोनॉमिस्ट है इसका एक शौक है कि इकोनॉमिक्स के फंडे लाइफ के दूसरे एरियाज में जाके अप्लाई करने की कोशिश करता है. ठीक है, ओके तो रिलेटेबल तो लग रहा है ना, बट अगेन आई वुड से दैट इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल, बट देन इट्स अ डिसेंट रीड. Times have changed for this once almighty discipline. Economics has been taken to task within and beyond its ramparts. Some economists have reached out, imported, borrowed, and collaborated. Been less imperial, more open. Okay. So economics का nature change हो रहा है, ठीक है. And he's like the author is talking about the old imperial economics and the like ways in which it is changing. Okay, it's important to underscore that how this flips the way we think about economics. Okay, so most possibly economics के रोल की बात हो रही है और economics का रोल कैसे चेंज हो रहा है, economics के फंक्शन में भी शायद चेंजेस आ रहे हैं. Okay, so I think I got some sense of what this passage is going to talk about. Okay, then Becker पे क्वेश्चन है and what has changed in economics. Okay, उस पे क्वेश्चन है. चलो स्टार्ट करते हैं. Okay. Oftentimes, when economists cross borders, they're less interested in learning from others than in invading their garden plots. जब जब economists border cross करते हैं, अब यहाँ पे the borders is not literal, it's metaphorical. मतलब वो अपने area से, अपने field से बाहर निकलते हैं. They're less interested in learning from others than they are in invading other garden plots. अब यार यहाँ पे sentence का significance समझना. Economists जो होते हैं, उनका arrogance कह लो या उनका एक नेचर का बिहेवियर का एक एस्पेक्ट कह लो कि वो दूसरों से नहीं सीखना चाहते. ठीक है, वो चाहते हैं कि दूसरों के एरिया में अपने चीजों को अप्लाई कर दे. द लेस इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रॉम अदर्स. दैट मीन्स कि इकोनॉमिक्स के अलावा यार दुनिया भर के एरियाज हैं. ठीक है, यू हैव एंथ्रोपोलॉजी, यू हैव सोशियोलॉजी, यू हैव हिस्ट्री, तो वो कहीं से नहीं सीखेंगे. लेकिन वो ये जरूर है कि दूसरों के प्लॉट में जाके कब्जा करेंगे. मतलब मैं कहूँ तो metaphorically it's like basically saying that they want to influence other subjects but they don't want to learn from other subjects. Gary Becker, for instance, pioneered the idea of human capital. To do so, he famously tackled topics like crime and domesticity, applying methods on in the study of markets to non-market life. Okay, so यार ये पहला मेरा फर्स्ट एंगल आया यहाँ पे कि जो गेरी बेकर जो था, ठीक है, उस बंदे ने क्या किया कि जब वो इन टॉपिक्स को स्टडी करता था, जैसे कि क्राइम हो गया, डोमेस्टिसिटी हो गया, तो वो कोशिश करता था कि जो मार्केट के फंडे हैं वो नॉन मार्केट लाइफ के अंदर जाके अप्लाई कर दे. अब आप देखो यहाँ पे ना, जैसे अब मैं रीड कर रहा हूँ तो यू कैन लाइक ऑलवेज टेक अ ब्रेक एंड थिंक अबाउट दिस. कैसा हो सकता है कि मार्केट के सारे फंडे आपकी डेली लाइफ में अप्लाई हो जाए? नहीं हो सकता. इट्स वेरी ऑड है ना. तो सुनने में पढ़ने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन दिस पर्सन यूज्ड टू डू दैट. ही प्रोजेक्टेड इकोनॉमिक्स आउटवर्ड्स इनटू न्यू रेल्म्स. इकोनॉमिक्स को अलग अलग एरियाज में, नए एरियाज में अप्लाई करने की कोशिश. फॉर एग्जाम्पल, बाय रिवीलिंग द एक्सटेंट टू विच ह्यूमंस कैलकुलेट मार्जिनल यूटिलिटी व्हेन चूजिंग देयर स्पाउसेस और स्टीलिंग फ्रॉम नेबर्स. नाउ व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ द टर्म मार्जिनल यूटिलिटी? Marginal utility is basically the amount of value that you get from every additional unit that you buy of a certain product. For example, अगर आपके पास एक मोबाइल फोन पहले ही है, ठीक है, तो आप जो नेक्स्ट मोबाइल फोन खरीदोगे उसका आपको कितना वैल्यू मिलेगा, दैट वुड बी कैलकुलेटेड इन व्हाट यू कॉल एज मार्जिनल यूटिलिटी, है ना. सो लाइक मनी के लिए हम लोग जनरली बोलते हैं ना, मनी फॉलोज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. ओके, सो दैट मीन्स ओके, द मोर मनी यू हैव, the less important it becomes with every additional crore or every additional lakh that you make, right? So ये जो मार्केट का कंसेप्ट है मार्जिनल यूटिलिटी का, उस मार्जिनल यूटिलिटी के कंसेप्ट को अप्लाई करने की कोशिश हो रही है नेबर्स पे.
spouses पे, ठीक है, how you select your husband or wife. At the same time, he did not let other ways of thinking enter his own economic realm. So guys, first paragraph में तो समझ में आ रहा है गेरी बेकर ट्रेडिशनली कैसे सोच रहा है कि इकोनॉमिक्स के फंडे, मार्केट्स के फंडे अलग अलग एरियाज में अप्लाई कर दूं, लेकिन दूसरे एरियाज इकोनॉमिक्स को इन्फ्लुएंस ना करें, ठीक है. सो उसका ऐसा सोचना था. फॉर एग्जाम्पल, ही डिड नॉट बोरो फ्रॉम एंथ्रोपोलॉजी और हिस्ट्री और लेट ऑब्जर्वेशंस ऑफ नॉन मार्केट इकोनॉमिक्स इन्फॉर्म हिज होमो इकोनॉमिकस. Okay, now homo economicus is a term that they're using, okay, most possibly for a person who thinks in a more economic sense. So author ये बोल रहा है कि गेरी बेकर जो था, ना तो वह एंथ्रोपोलॉजी से सीखना चाहता था, ना हिस्ट्री से सीखना चाहता था, ना किसी नॉन मार्केट के किसी और एरिया से सीखना चाहता था, ठीक है. एंड लाइक ऑब्वियसली ही वुड गो एंड ट्राई टू अप्लाई मार्केट फिलोसफी टू अदर नॉन मार्केट एरियाज, बट खुद उनको नहीं लगता था कि भाई इकोनॉमिक्स को किसी सब्जेक्ट से इन्फ्लुएंस होना चाहिए. Okay, now to some extent it also shows the sort of arrogance that some economists may have in the superiority of their field, maybe. Very Becker was a picture of imperial economics in the heyday of the disciplines bravura. ठीक है. So imperial economics क्या है? Imperial economics मतलब ये ट्रेडिशनल पुराने जमाने वाली इकोनॉमिक्स की बात हो रही है, और जब गोल्डन डेज थे इंपीरियल इकोनॉमिक्स के, तो उन दिनों की ही यादें लेके वो घूम रहा है, और अभी भी वो सोचता है कि जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, लाइक it looks like he believes that economics is superior and like it should not be influenced by any other subject. So mota first paragraph is just talking about the fact that how Harry Becker used to think of economics. Okay, he would not be influenced by the subjects, but he would try to influence other subjects using the market philosophy. Plain and simple. That's what first para is all about. Times have changed for the almighty discipline. Economics has been taken to task. अब देखो यहाँ पे एक sarcastic angle आ रहा है. Economics has been taken to task. Okay, that means कहते हैं ना कि भाई अब टिट फॉर टैट टाइप की सिचुएशन हो रही है, या फिर लाइक अब इनको सबक सिखाया जा रहा है. इकोनॉमिक्स हैज बीन टेकन टू टास्क विद इन एंड बियॉन्ड इट्स रैम्पार्ट्स. अपने बाउंड्रीज है ना, ठीक है, जो आपके किले की जो बाउंड्रीज थी उसके बियॉन्ड जाके चीजें हो रही हैं, ठीक है. मतलब इकोनॉमिक्स को अपनी खुद की बाउंड्री पर, बाउंड्री के बाहर, दोनों जगहों पे चेंजेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है. Some economists have reached out, imported, borrowed and collaborated, guys. So this is the first change. बहुत सारे इकोनॉमिस्ट जो हैं उन्होंने इंपोर्ट किया है, बोरो किया है, कोलैबोरेट किया है, बीन लेस इंपीरियल एंड मोर ओपन. इंपीरियल का मतलब पुराने जमाने वाली सोच, ठीक है, जो पुराने इकोनॉमिस्ट सोचते थे, उनके कंपैरिजन में नाउ दे हैव बिकम मोर ओपन. सो मोस्ट पॉसिबली अब जो इकोनॉमिस्ट हैं वो दूसरे एरियाज से भी इन्फ्लुएंस होने लगे होंगे. उन्होंने वहां के आइडियाज को बोरो किया, इंपोर्ट किया, कोलैबोरेट किया, ठीक है. कंसिडर थॉमस पिकेटी एंड हिज आउटरीच टू हिस्टोरियंस. तो यार ये थॉमस पिकेटी जो है, ही इज द फर्स्ट पर्सन, ठीक है, जिसकी बात हो रही है, जो दूसरे सब्जेक्ट्स का इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक्स में लाने की कोशिश कर रहा है. लाइक ही इज रीचिंग आउट टू हिस्टोरियंस. ओके, सो मोस्ट पॉसिबली हिस्ट्री का इन्फ्लुएंस कमिंग ऑन इकोनॉमिक्स. द बूमिंग फील्ड ऑफ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स, द फ्यूचर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइकोलॉजी. सेकेंड एग्जाम्पल इन्होंने दिया बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का, ठीक है. बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के अंदर नाम से ही पता चल रहा है, बिहेवियर मतलब सोशल साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, यानी कि बिहेवियर इकोनॉमिक्स के अंदर साइकोलॉजी का असर पड़ता है, इफेक्ट आता है इकोनॉमिक्स पे. इज अनदर केस हैविंग स्पॉन्ड एक्टिव सबफील्ड्स लाइक जजमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड टर्न टू एक्सपेरिमेंटेशन. द फील्ड एम्स टू गो बियॉन्ड द कैरिकेचर ऑफ रैशनल मैन टू एक्सप्लेन हाउ ह्यूमंस मेक डिसीजंस. अब ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर इकोनॉमिक्स है, बिहेवियरल इकोनॉमिक्स है, इसके मतलब इसका जो कह सकते हो आप, इसका जो वर्किंग एरिया है, ठीक है, दैट इज related to like how judgment happens. Okay, and as it has already been mentioned कि social psychology का effect है यहाँ पे economics के ऊपर, और ये समझने की कोशिश होती है कि जो एक so called rational person है, एक logical person है, कैसे वो सिर्फ अपनी rationality के beyond जाके भी decision making करता है. which means कि जनरली हमें ऐसा लगता है ना कि रैशनल हो आप तो हर वो चीज करोगे जो लॉजिकली सेंस बनाती है, लेकिन डिसीजन मेकिंग इतनी इजी नहीं है. ओके, यू गो बियॉन्ड दैट लाइक ना क्लीशेड डेफिनेशन ऑफ बीइंग रैशनल टू एक्चुअली मेक डिसीजंस. ओके, व्हिच इज ट्रू. जैसा कि कहा भी जाता है कि भाई हम लोग इमोशनली डिसीजन पहले ले लेते हैं, बाद में जस्टिफाई करते हैं. सो इट्स नॉट लाइक द डिसीजंस दैट वी टेक आर ऑलवेज रैशनल. ओके, सो गाइस, नाउ यू कैन सी द पर्पस ऑफ सेकंड पैराग्राफ. सेकेंड पैराग्राफ का पर्पस ये है कि आप ये साबित करो कि जो पुराना फंडा था इंपीरियल इकोनॉमिक्स वाला, वो अब रिवर्स हो गया है, ठीक है. नाउ यू हैव पीपल लाइक थॉमस पिकेटी हु आर लाइक बेसिकली रीचिंग आउट टू हिस्टोरियंस,
हिस्ट्री इज अफेक्टिंग इकोनॉमिक्स एंड सिमिलरली बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का जो फील्ड है उसमें सोशल साइकोलॉजी का जो इफेक्ट है वो इकोनॉमिक्स पे आ रहा है। तो पहले वाले पैराग्राफ और सेकंड वाले पैराग्राफ के अंदर वो चेंज की आप यू कैन सी द हाउ द थिंग्स हैव चेंज्ड, राइट। ओके, पहले तो जो इंपीरियल इकोनॉमिक्स वाली उन्होंने बात की कि भाई वो किसी से इफेक्ट नहीं होते थे, ठीक है। इकोनॉमिक्स उल्टा खुद चाहती थी कि दूसरे सब्जेक्ट्स को इम्पैक्ट करे, बट अभी उल्टा हो गया, ठीक है। नाउ अदर सब्जेक्ट्स आर आल्सो इम्पैक्टिंग economics. It is important to underscore how this flips the way we think about economics. For generations, economists have presumed that people have interest preferences in the neoclassical argot. Argot means technical language. In neoclassical language that gets revealed in the course of people's choices. Okay. Now, argot or jargon refers to a specialized language that only people from that field can understand. ठीक है। So अभी ऑथर कह रहा है कि जो स्क्रिप्ट है वो फ्लिप हो गई है अबाउट इकोनॉमिक्स। पहले हम लोग मानते थे कि इकोनॉमिस्ट ये अज्यूम करते थे कि लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, प्रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है। और वो जो इंटरेस्ट होते हैं वो लोगों की चॉइसेस में रिवील होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको लेट्स से खाने में इंटरेस्ट है तो आपका जो स्पेंडिंग है वो फूड आइटम्स पे ज्यादा होगा। तो ये पुराना बिलीफ था कि लोगों के इंटरेस्ट होते हैं, प्रेफरेंसेस होते हैं, और प्रेफरेंसेस के हिसाब से लोग अपनी चॉइसेस करते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट कम बिफोर एक्शंस एंड डिटरमिन देम। ओके, इंटरेस्ट पहले आते हैं, एक्शंस उसके बाद में आते हैं। इफ यू आर हंग्री यू बाय लंच, इफ यू आर कोल्ड यू गेट अ स्वेटर, if you have only if you only have so much money and can't afford to deal with both your growling stomach and your shivering which needs to you choose to meet using your scarce giving reveal your preferences। अब देखो प्रेफरेंसेस की रिवील होने की बात हो रही है। प्रेफरेंसेस का मीनिंग क्या है? देखो प्रेफरेंस आपका क्या है कि आप क्या खाने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, अगर आपको भूख लग रही है तो क्या आप लंच खरीदोगे, या आपका जो इंटरेस्ट है या जो आपका उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो प्रेफरेंस है वो इस चीज में ज्यादा है कि ठंड इतनी ज्यादा है कि आपको स्वेटर परचेस करना चाहिए। सो द थिंग इज कि अगर आपका लिमिटेड मनी है तो यू हैव टू डिसाइड कहां पे आप मनी स्पेंड करने वाले हो, विच मीन्स author is using an example to make his point that people are guided by their preferences। Okay, so obviously when you have limited money, जो नंबर वन प्रेफरेंस होगी उस पर आप पैसा खर्च करोगे, चाहे वो लंच हो चाहे वो स्वेटर हो, ठीक है। Psychologists take one look at this simple formulation and shake their head. Increasingly, even some mainstream economists have to admit that Homo economicus doesn't always behave like the textbook maximizer. Irrational behavior cannot simply be waved away as extra economic expression of passions over interest। Okay, now this is a very important point. Psychologists take one look at this simple formulation and shake their heads। Okay, that means they shake their heads in disbelief। क्या रे यार, ऐसा थोड़ी होता है। Increasingly, even some mainstream economists have to admit that Homo economicus doesn't always behave like the textbook maximizer, which means कि जो Homo economicus का जो traditional फंडा है कि man is rational, he is always going to maximize his interest in the decision making। Okay, वैसा होता नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स कि होमो इकोनॉमिकस का जो इमेज है वो एक रैशनल पर्सन का है जो कि बहुत सोच समझ के, बहुत विजडम के साथ ये डिसाइड करता है कि मुझे किस चीज में पैसा खर्च करना चाहिए। लेकिन ऑथर ये बोलता है कि लेकिन जो होमो इकोनॉमिकस का जो इमेज है वो एक्चुअली उतना सही भी नहीं है, बिकॉज इरेशनल बिहेवियर के बेसिस पे भी डिसीजन मेकिंग होता है, एंड इरेशनल बिहेवियर को आप सिर्फ ये कह के नहीं हटा सकते कि ये तो एक्स्ट्रा इकोनॉमिक एक्सप्रेशन ऑफ पैशन है, ठीक है। दैट मीन्स कि इंटरेस्ट को ओवरराइड कर देता है क्या, इरेशनल बिहेवियर। ओके, दिस इज one place where the humanist can help the economist if narrative economics is going to help us understand how rivals duke it out, who wins and who loses. We are going to need much more than lessons from epidemiological studies of viruses or intracranial stimuli। Now, this is one place where humanist can help the economist। Why? क्योंकि economist decision making को देखता है homo economicus की नजर से, which means you have interest and you always prioritize your interest when you make a decision। लेकिन डिसीजन मेकिंग ऐसे नहीं होती। डिसीजन मेकिंग के अंदर आपके इमोशंस भी इन्वॉल्व होते हैं, और इरेशनल बिहेवियर जो है वो एक मार्जिनल या एक फ्रिंज एलिमेंट नहीं है, वो अक्सर बहुत बार देखा जाता है पीपल टेक इरेशनल डिसीजंस। ओके, सो ये जो एंगल है ना इरेशनल डिसीजंस वाला, ठीक है, जिसको रैशनल ह्यूमन बीइंग वाला प्लान जो है, या जो होमो इकोनॉमिकस जिसको कहते हैं ना, अ पर्सन डिसाइड्स इन अ रैशनल मैनर, वो फंडा एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये वो जगह है जहां पे ह्यूमनिस्ट इकोनॉमिस्ट की मदद कर सकता है, बिकॉज ऑब्वियसली ह्यूमनिस्ट कैन एक्सप्लेन दैट इरेशनल बिहेवियर बेटर एज कंपेयर टू इकोनॉमिस्ट हु ओनली बिलीव इन होमो इकोनॉमिकस, ठीक है। ओके, एंड दिस इज गिवन इनडायरेक्टली दैट
होमो इकोनॉमिकस डज नॉट ऑलवेज बिहेव लाइक टेक्स्ट बुक मैक्सिमाइजर कि मुझे अपने इंटरेस्ट को मैक्सिमाइज करना है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, दैट मीन्स कि इसके बियॉन्ड भी कई चीजें हैं जो इकोनॉमिक्स वालों को समझनी है, उसके लिए ह्यूमनिस्ट उनकी मदद कर सकता है। Above all, we need politics and institutions. Okay, so let's see. Yeah. Above all, we need politics and institutions. Schiller, the Nobel Prize winning economist, connects perceptions of narratives to change in behavior and thence to social outcomes. He completes a circle that was key to behavioral economics and brings in storytelling to make sense of how perceptions get framed. Okay, so now the author talks about the need of politics and institutions. शिलर की बात हो रही है, ही वन अ नोबेल प्राइज। तो शिलर कनेक्ट करता है परसेप्शन ऑफ नैरेटिव्स टू चेंजेस इन बिहेवियर एंड हेंस सोशल आउटकम्स। ठीक है, तो किसी भी चीज को लेके हमारे माइंड में एक नैरेटिव होता है, एक स्टोरी होती है, वो स्टोरी हमारे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करती है। ठीक है ना, जैसे सपोज करो कि भाई व्हेन यू बाय अ कार देयर इज अ नैरेटिव to the idea of owning a certain car. Okay, so it's not only about the utility of the car but also about the perception of how people perceive you when you drive a certain car. Okay, maybe a sedan or maybe a SUV. Okay, और कई बार उसका लेना देना आपके क्या कह सकते हो आप, आपके सोशल इमेज से भी होता है ना। तो जो आपका बिहेवियर है वो उस परसेप्शन पे डिपेंड करेगा जो एक सर्टेन आइडिया के नैरेटिव के बारे में है, और उसी से आपके सोशल आउटकम्स आएंगे, which means that perception of narratives is very very important when it comes to social outcomes and changes in behavior. He completes a circle that was key to behavioral economics. Okay, so ये behavioral economics का एक पार्ट है। ठीक है, वो पिक्चर को कंप्लीट करता है, brings in storytelling to make sense of how perceptions got framed, and Schiller gets into picture the idea of storytelling to basically explain perceptions and how they get framed. अब यहाँ पे देखो एक चीज समझ में आ रही है कि ये बेसिकली जो शिलर जो पर्सन है, ठीक है ना, लाइक ही इज एन इकोनॉमिस्ट, ही इज इनटू सोशल, okay, he's into behavioral economics, and he wants to explain that how perception of narratives is important in the way we make buying decisions and even the social outcomes of that decision. This cycle, perception to behavior to society, was once mediated or dominated by institutions. अब यहाँ पे अगर ऐसा लिखा है कि ये जो साइकिल है परसेप्शन टू बिहेवियर टू सोशल आउटकम्स, ये जो साइकिल है इसमें पहले इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल पार्टीज, लॉबी ग्रुप्स का बोलबाला था। ठीक है, मीडिया ग्रुप्स इसमें बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, दैट प्लेड अ वाइटल रोल इन लेजिटिमाइजिंग, रिप्रेजेंटिंग एंड एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। ओके, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। Yet institutions have been stripped from Schiller's account. Now this is something that's very strange. ऑथर यहाँ भी बोल रहा है कि शिलर के आने से पहले, ठीक है, या शिलर ने जो ये थ्योरी दी उसके पहले की अगर अपन बात करें तो ये जो पूरी चेन है फ्रॉम परसेप्शन ऑफ नैरेटिव टू बिहेवियर टू सोसाइटी, इसमें इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा रोल था। ठीक है, वो पॉलिटिकल पार्टीज हो सकती है, लॉबी ग्रुप्स हो सकते हैं, लेकिन शिलर ने इन सब चीजों को हटा दिया है। दैट मीन्स कि इंस्टीट्यूशंस को शिलर ने अपने अकाउंट के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। Okay, to reveal a bare dynamic of emotion and economics without the intermediating place of politics. Okay, तो behavioral economics जो है उसमें वैसे भी behavior की बात होती है जो कि emotion से influence होता है। जैसा कि मैंने एक एग्जांपल दिया कार बाइंग का, तो कार बाइंग की अगर मैं बात करता हूँ तो कार बाइंग इज नॉट ओनली अबाउट बाइंग अ कार एज एन यूटिलिटी, a medium for you to travel from location A to location B. It also has a lot of perception attached to the idea, the narrative of buying a car and owning a car, and that obviously influences the social outcome. तो ऑथर के हिसाब से शिलर ने सिर्फ इन चीजों को इंपॉर्टेंस दी है, इमोशंस को, इकोनॉमिक्स को, बिहेवियर को। ठीक है, पॉलिटिक्स, इंस्टीट्यूशंस, लॉबी ग्रुप्स, मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस, उनको इंपॉर्टेंस शिलर ने नहीं दी। तो इनके इकोनॉमिक्स का ये एक अलग एस्पेक्ट है ना, मतलब लाइक दिस इज समथिंग दैट द ऑथर हैज हाइलाइटेड। Okay, now having read the passage, I can see the passage in itself is not very tough, but yes, because there is so much data. Okay, there's a lot of scope for me to make questions where certain questions could get confusing. तो पहले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं। In the first paragraph, the author is making the point that economists like Becker. अब बेकर के बारे में हम लोगों ने फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर पढ़ा था। ठीक है, अब बेकर के कंटेक्स्ट में अगर मुझे चेक करना है तो मैं सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ को चेक करूंगा, बिकॉज बेकर का डिस्कशन मेनली ऊपर ही था ना, जब इंपीरियल इकोनॉमिक्स की और उन सब की बात हो रही थी, है ना। ठीक है, अब बेकर जो था, ठीक है, इवन बिफोर आई रीड दी ऑप्शंस, इनका फंडा ये था कि ये चाहते थे कि इंपीरियल इकोनॉमिक्स वाला प्लान ही चलता रहे
और इकोनॉमिक्स किसी सब्जेक्ट से इम्पैक्ट नहीं हो, हालांकि इकोनॉमिक्स खुद जाके दूसरे सब्जेक्ट्स को इम्पैक्ट करके आ जाए। ठीक है, तो ये मार्केट वाले जो बिहेवियर की जो चीजें हैं वो नॉन मार्केट एरियाज में भी लगाने की कोशिश करते थे। ठीक है, ऑप्शन देखते हैं। टेंडेड टू गार्ड द डिसिप्लिन फ्रॉम कोचिंग बाय एकेडमिक्स फ्रॉम अदर सब्जेक्ट्स। ऐसा कहीं लिखा था क्या कि उनके सब्जेक्ट को लोग आके पोच करना चाह रहे थे? पोच का मतलब कि भी वो इकोनॉमिक्स में से कुछ निकाल के भाग जाना चाह रहे थे, चुरा लेना चाह रहे थे बाय एकेडमिक्स फ्रॉम अदर सब्जेक्ट एरियाज, कि दूसरे एकेडमिक एरियाज के दूसरे सब्जेक्ट एरियाज के जो एकेडमिक्स है वो इनके सब्जेक्ट को पोच करना चाह रहे हैं। ठीक है, मतलब वहां से उनको कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और वो अपने सब्जेक्ट में डाल लेंगे और वो उसको बचाना चाह रहे हैं। ऐसा पोचिंग की या दूसरे सब्जेक्ट एरियाज के टीचर्स के इनके सब्जेक्ट को पोच करने की, तो ये तो बिल्कुल ही मतलब अनरिलेटेड ऑप्शन है। Okay, benefited from the application of their principles and concepts to non-economic phenomena. Did he get a benefit out of it from the application of their principles and concepts to non-economic phenomena? देखो, ये जरूर आपने बोला है कि अदर एरियाज में इकोनॉमिक यानी कि मार्केट फिनोमिना या मार्केट के कंसेप्ट को इन्होंने लगाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा भी नहीं लिखा कि नॉन इकोनॉमिक फिनोमिना के अंदर इकोनॉमिक्स को अप्लाई करके इनको कोई बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया। ठीक है, बेनिफिट एज इन लाइक वी डोंट नो, इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकता है या कोई और बेनिफिट हो सकता है। ये एक्सप्लेन भी नहीं किया उन्होंने कैसा बेनिफिट हुआ, इनको पैसे मिल गए या रिच हो गए, क्या हो गया। ओके, तो ये भी ऑप्शन गलत है क्योंकि ऐसे बेनिफिट की कोई बात नहीं हुई है। यूज इकोनॉमिक्स टू एनालाइज नॉन मार्केट बिहेवियर विदाउट इनकॉर्पोरेटिंग पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम अदर एरियाज ऑफ इंक्वायरी। ओके, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन बिकॉज जो फर्स्ट पैराग्राफ था, अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ोगे, and I don't even need to reconsider reading it again for a very simple reason that we know कि इनका फंडा ही ये था कि दूसरे सब्जेक्ट से ये इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहते थे। ठीक है, ओके, he did not let other ways of thinking enter his own economic realm। ये देखो, he did not let other ways of thinking enter his own economic realm। सो अदर सब्जेक्ट्स इनके एरिया को इम्पैक्ट ना करें, लेकिन ये खुद चाहते थे कि अपना जो मार्केट वाला जो इनका अंडरस्टैंडिंग है उसको दूसरे एरियाज में जाके ये अप्लाई करना की कोशिश करते थे, है ना। He famously tackled topics like crime and domesticity, applying methods owned in this style of markets to domain of non-market life. Okay, so in this case, very easily, third option looks like a decent choice. Had begun to borrow concepts from other disciplines, but were averse to later applying economic principles. Fourth option कह रहा है कि भाई ये बोरो तो कर लेते थे लेकिन अप्लाई नहीं करते थे। ओके, ऐसा कहीं भी नहीं आया पैसेज के अंदर कि इन्होंने बोरो कर लिया लेकिन अप्लाई नहीं किया। इन्होंने एक्चुअली कभी बोरो करने की कोशिश ही नहीं की। He was least bothered about borrowing from other subjects. Okay, the answer is going to be third option. Okay. नेक्स्ट बात है, टाइम्स ऑफ चेंज फॉर दी वंस अलमाइटी डिसिप्लिन। ये सेकंड पैराग्राफ के अंदर शिफ्ट आया था, ये उसकी बात हो रही है। वी कैन इन्फर फ्रॉम द स्टेटमेंट एंड द एसोसिएटेड पैराग्राफ दैट द ऑथर इज बीइंग। देखो, सेकंड पैराग्राफ अगर आपको याद होता तो हम लोगों ने पढ़ा भी था, एंड इन द सेकंड पैराग्राफ द ऑथर इज बीइंग सरकास्टिक। ओके, बिकॉज ऑथर यहाँ पे कमेंट्री ये कर रहा है कि इकोनॉमिक्स का जो आप जो पूरा इंपीरियल इकोनॉमिक्स का जो प्लान था वो अब उल्टा हो रहा है। नाउ यू हैव पीपल लाइक थॉमस पिकेटी who are popular economists, and they're actually reaching out to other experts from other fields to borrow from their field। तो यहां पे आपने बात की आउटरीच टू हिस्टोरियंस की। अच्छा, फिर बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में, तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स के नाम से समझ में आ रहा है कि आप सोशल साइकोलॉजी के फंडे इकोनॉमिक्स में लाने की कोशिश कर रहे हो। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि जो सोशल साइकोलॉजी है उसके फंडे बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में लग रहे हैं, इन थिंग्स लाइक जजमेंट, डिसीजन मेकिंग एंड ऑल दैट। Right. Okay. And it also goes on to explain that the idea of Homo economicus, a rational man, is something that is not enough, and you need to basically get influenced by other areas like social psychology, etc. ठीक है, अब options को देखते हैं यहाँ पे। Okay. The disparaging of economists' inability to precisely predict market behavior. Disparaging, very strong word. ठीक है, आप कोई बुराई नहीं कर रहे। ये मार्केट बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने की कहां बात हुई है? ठीक है, कि मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा, मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, नहीं। सरकास्टिक अबाउट हाउ इकोनॉमिस्ट हु अर्लियर शन्ड, ठीक है, जो पहले अवॉइड करते थे बाकी डिसिप्लिन से इन्फ्लुएंस होना, आर नाउ बिगिनिंग टू इनकॉर्पोरेट देयर इन देयर एनालिसिस। परफेक्ट ऑप्शन, वेरी इजी क्वेश्चन। सो पहले जो इकोनॉमिस्ट दूसरे एरियाज को कुछ समझते ही नहीं थे और वहां से नहीं कुछ सीखना चाहते थे, नाउ दे आर beginning to incorporate there in their own analysis, and Thomas Piketty is the first example. Critical, okay, critical, strong word. Critical of economists openly borrowing and collaborating across disciplines. No one is critical.
ठीक है, नो वन इज क्रिटिकल। ओके, आप ये कह रहे हो कि देखो कैसे चीजें चेंज हो रही है, ठीक है, और एक सरकाज़म है स्टेटमेंट के अंदर कि पहले कहाँ इकोनॉमिस्ट जो थे वो दूसरे एरियाज को कुछ समझते ही नहीं थे, उनसे कुछ सीखना नहीं चाहते थे, अब आगे से जाके वो उनको इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। Judgmental, guys, again a very strong word, judgmental about the ability of economic tools to accurately manage crisis leading to downfall of this lofty science. Okay, fourth option तो इतना गलत है, like just look at it, judgmental. Okay, so you have a judgment about the ability of economic tools. Economic tools की कहाँ बात हुई कि एक क्राइसिस को मैनेज नहीं कर पाता और इसकी वजह से इस साइंस का डाउनफॉल फॉल हो रहा है। साइंस कौन सी, इकोनॉमिक? मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे किसी डाउनफॉल की बात हुई है, ठीक है, ना यहाँ पे इकोनॉमिक टूल्स की बात हुई है, ना यहाँ क्राइसिस मैनेजमेंट की बात हुई है। ऑल दीज ऑप्शंस आर टोटली आउट ऑफ स्कोप। ओके, द आंसर इज सेकंड ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, द ऑथर क्रिटिक्स शिलर्स अप्रोच टू बिहेवियरल इकोनॉमिक्स फॉर। अभी शिलर्स अप्रोच जो है ना, ये लास्ट पैराग्राफ के अंदर आई थी। अब इफ यू रिमेंबर दिस पैराग्राफ, ठीक है, तो इस पैराग्राफ के अंदर ऑथर ने शिलर के बारे में एक चीज बताई थी, एंड दिस इज समथिंग दैट यू मे हैव नोटिस्ड, दैट शिलर ने एक रिलेशनशिप की बात की कि कैसे परसेप्शंस ऑफ नैरेटिव्स आपके बाइंग बिहेवियर को या आपके चेंजेस इन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं और उसके हिसाब से सोशल आउटकम्स भी चेंज करते हैं। मैंने आपको कार का एग्जांपल भी दिया कि नैरेटिव से कैसा आपका बिहेवियर है ना, लाइक परसेप्शन से कैसा आपका बिहेवियर शिफ्ट होता है और सोशल आउटकम्स जो है वो उसकी वजह से आते हैं। लेकिन शिलर ने ना एक चीज थोड़ी डिफरेंट बताई कि लाइक है ना, एंड ही इज इनटू दिस बिहेवियरल इकोनॉमिक्स। सो he said that or he ignored, I would say, that political parties, lobby groups and media organizations, institutions have any role to play. So he literally ignored the role of these institutions, like political parties, lobby groups, media organizations. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी। बाकी देखो रिलेशनशिप तो इन्होंने बताया, ठीक है, कि भाई पहले आपका परसेप्शन आया, परसेप्शन के बाद फिर चेंजेस इन बिहेवियर आया, उसके बाद फिर सोशल या सोसाइटी आउटकम आया, ठीक है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस के रोल को इन्होंने कंसिडर नहीं किया, इग्नोर कर दिया एक तरीके से ना, ठीक है। ओके, सो यू कैन सी दिस लाइन, येट इंस्टीट्यूशंस हैव बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम शिलर्स अकाउंट। ओके, आते हैं वापस। Relying excessively on storytelling as the main influence. Storytelling as the main influence. Denigrating the role of institutions while creating a link between behavioral economics and perception. Denigrating यार अगेन थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, ठीक है, क्योंकि ये नहीं कह रहे कि इंस्टीट्यूशंस का जो रोल है उसकी मैं बुराई करूंगा या उसकी मैं इंसल्ट करूंगा। देखो इंस्टीट्यूशंस के रोल को इन्होंने इग्नोर कर दिया, ठीक है। ओके, राइट। Linking emotions and rational behavior without considering the mediation of social institutions. This is good. इन्होंने सोशल इंस्टीट्यूशंस के रोल को कंसिडर नहीं किया, ठीक है, हालांकि इमोशंस और रैशनल बिहेवियर के रोल को लिंक किया, ठीक है ना, इमोशंस और उसके बेसिस पे जो आपका जो आप रोल करते हो। इग्नोरिंग द मार्जिनल रोल दैट मीडिया एंड पॉलिटिक्स प्ले इन इन्फ्लुएंसिंग people's behavior, right? Okay. If I look at this option, ignoring the marginal role that media and politics play in influencing people's behavior, okay, इसमें एक चीज है जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, वो ये है कि भाई आप ये कह रहे हो कि भाई उन्होंने इग्नोर कर दिया, ओके, मार्जिनल रोल को, है ना। तो यहाँ पे अब मेरे को ये नोटिस करना पड़ेगा कि भाई इज इट समथिंग दैट is it a like you know location where marginal role is something that the author has really talked about, okay, या ऐसा तो नहीं कि भी ऑथर ने मार्जिनल रोल की बात ही नहीं की हो, है ना, क्योंकि अगर अपन ऑप्शंस को देखते हैं तो इसमें इन लोगों ने स्पेसिफिकली यहाँ पे जो उसने हाईलाइट किया है कि दैट इट हैड अ मार्जिनल रोल। नाउ अगर पैसेज में मार्जिनल रोल दे रखा है, ठीक है, तो देन इन दैट केस तो ये हो सकता है। अगर पैसेज में मार्जिनल रोल नहीं दे रखा, ठीक है, देन इन दैट केस ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो एक बार देख लेते हैं पैसेज के अंदर चल के। ओके, इज दिस लाइक मार्जिनल रोल हैज बीन मेंशन्ड और नॉट? ओके, सो लुक एट दिस। Okay, above all, we need political institutions. Schiller, the Nobel Prize winning economist, connects perception, narrative, change in behavior, and hence the social outcomes. He completes a circle that was key to behavioral economics and brings in storytelling to make how sense of how perceptions got framed. This cycle, perception to behavior to society, was once mediated. Okay, देखो यहाँ पे लिखा है कि was once mediated or dominated by institutions, the political party, lobby groups, and media organizations, है ना। मतलब ये जो perception to behavior to society का जो लिंक है,
इसके अंदर मीडिएशन एक समय पे इंस्टीट्यूशंस का और पॉलिटिकल पार्टीज और लॉबी ग्रुप्स का हुआ करता था, मतलब इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता होगा पहले, ठीक है, जो these institutions have been stripped from Schiller's account, जो कि बाद में हटा दिया गया। तो now I'm sure that पहले इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल था, तो ignoring the margin role this would be wrong, okay, because yes, median politics का रोल था पहले in influencing people's behavior, but it was not a margin role, it was actually a big role, okay, so now I can say that he ignored the role of mediation of social institutions, okay, जिसमें सोशल इंस्टीट्यूशन में आपका मीडिया भी आ गया, पॉलिटिक्स भी आ गया, आपके है ना, लाइक दोज ग्रुप्स भी आ गए जो लॉबी करते हैं, ठीक है, एंड ही इज लिंकिंग इमोशंस विद द बाइंग बिहेवियर और विद द बिहेवियर ऑफ पीपल, ओके, रैशनल बिहेवियर, सो दिस इज द बेस्ट ऑप्शन दैट वी हैव गिवन द चॉइस, राइट, ओके, बाकी ऑप्शंस को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है, ओके, इनफैक्ट बाकी ऑप्शंस में ना मेन जो मुद्दा था उन्होंने उसको टारगेट ही नहीं किया, क्योंकि मेन चिलर अप्रोच के अंदर जो मेन एस्पेक्ट था वो यही था दैट शिलर वाज दी लाइक है ना, वाज अ पर्सन हु बेसिकली ignored or did not consider the role of social institutions, okay, that angle is only targeted in third option. If you look at the other options, like first option says relying excessively on storytelling, है ना, लेकिन मेन मुद्दा आपने मिस आउट कर दिया। फिर सेकंड में कहा आपने denigrating the role of institutions, okay, denigrating very strong word, excessively very strong word, marginal बात ही नहीं हुई, factually गलत है ना, ठीक है, so third option. Last question, we can infer from the passage that the term homo economicus refers to someone who, अब homo economicus generally एक ऐसा term था जो passage में यूज हुआ है एक ऐसे इंसान के लिए जिसके बारे में ये माना जा सकता है कि वो rationally अपने decisions लेता है according to preferences, और होमो इकोनॉमिक्स की जो डेफिनेशन थी ना वो इंपीरियल इकोनॉमिक्स में डोमिनेट करती थी, हालांकि लास्ट में बाद में जाके दिस रिलेशनशिप वाज क्वेश्चन, ओके, सो लेट मी जस्ट टेक यू टू दी पैराग्राफ, ओके, होमो इकोनॉमिक्स की अपन बात करते हैं, ठीक है, सो आते हैं यहाँ पे, देखो, सो लुक एट दिस पैराग्राफ, ओके, दिस इज द थर्ड पैराग्राफ. It is important to underscore how this flips the way we think about economics. For generations, economists have presumed people have interests, preferences in the neoclassical argot that get revealed in the course of people's choices. Interests come before actions and determine them. If you're hungry, you buy lunch. If you're cold, you get the sweater. If you only have so much money, you can afford to deal with both a growling stomach and your shivering, which need you choose to meet using scarce caving reveal your preference. Okay, ये जो पूरा इन्होंने यहाँ पे description दिया है ना कि आपका जो बाइंग बिहेवियर है या जो आपका डिसीजन मेकिंग है वो आपके प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग शेप होता है, आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग शेप होता है, ठीक है, उस चीज को ही इन लोगों ने होमो इकोनॉमिकस बोला है। ये चीज पता है सेकंड पैराग्राफ की कुछ लाइनों में हमें समझ में आ जाती है। साइकोलॉजिस्ट टेक वन लुक एट दिस सिंपल फॉर्मुलेशन, कौन सी सिंपल फॉर्मुलेशन, दैट पीपल डिसाइड देयर बाइंग प्रेफरेंसेस अकॉर्डिंग टू रैशनल डिसीजन ऑफ व्हाट इज इन देयर इंटरेस्ट और व्हाट इज ऑफ देयर इंटरेस्ट, ओके, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनका प्रेफरेंस क्या है। लेकिन इसको इन्होंने कहा कि साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि नहीं यार ये तो कुछ ज्यादा ही सिंपल फॉर्मुलेशन है, एंड शेक देयर हेड्स। इंक्रीजिंगली इवन मेन स्ट्रीम इकोनॉमिस्ट्स हैव टू एडमिट दैट होमो इकोनॉमिकस डजंट ऑलवेज बिहेव लाइक टेक्स्ट बुक मैक्सिमाइजर। तो इसका मतलब ऊपर जो बात हो रही थी एक रैशनल पर्सन की जो अपने प्रेफरेंस के हिसाब से डिसीजन मेकिंग करता है वो होमो इकोनॉमिकस की इमेज जो है वो होल्ड नहीं करती। They have to admit that homo economicus doesn't always behave like textbook maximizer, so that means he's not rational always, ठीक है, and that's the whole idea कि behavioral economics हमें क्यों पढ़नी चाहिए, क्योंकि behavioral economics में we try to understand the behavior of a person which according to the passage is not fully rational as per the imperial economics homo economicus, okay. So homo economicus कौन हुआ, homo economicus वो हुआ एक ऐसा इंसान जो rational decisions लेता है depending on preferences, okay. Is not influenced by preference and choice of others, गलत, क्योंकि होमो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट आपके पुराने वाले इकोनॉमिक्स के अंदर था। मैक्सिमाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज बेस्ड ऑन नॉन मार्केट चॉइसेस, ये गड़बड़ हो गया, ठीक है ना, दिस इज रॉन्ग। बिलीव्स इन बोरोइंग एंड कोलैबोरेटिंग विद अदर डिसिप्लिन्स, यार होमो इकोनॉमिक्स बाकी डिसिप्लिन्स के साथ जाके कोलैबोरेट करेगा, उनके साथ रिलेशनशिप बनाएगा, ऐसा कहाँ लिखा है, रॉन्ग है, ओके, इजीली फर्स्ट ऑप्शन, ओके। So guys, that was the second passage. Now before we end the session, okay guys, do look at the apex patch, okay. So
इट्स अ रीसेंट बैच, मतलब अभी स्टार्ट होगा 5th मई को, ठीक है, तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो. ओके, जस्ट लाइक अदर बैचेस इट इंक्लूड्स मोर और लेस एवरीथिंग. ओके, एंड इट्स गोना बी अवेलेबल for 18K pricing. You can call at the office numbers for more info. And also you can consider my batch. Okay, so if you want to study only verbal, तो आप ये batch भी consider कर सकते हो, ठीक है. And if you think it adds value, okay, do like the session and whatever your feedback is. That's it. मिलते हैं next session में. Bye bye.